براہ راست لے چلے ایک بار پھر سے آپ کو دوشنبے جہاں پر اس وقت میڈیا ٹاک جاری ہے۔ پاکستان تاجکستان وزیر اعظم عمران خان جو کہ دوشنبے میں موجود ہیں پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم سے، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اور یہاں پر موجود لوگ جو کہ ان سے سوالات کریں گے اور وزیر اعظم عمران خان ان کو جواب دیں گے۔ یہ براہ راست مناظر آپ دوشنبے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آج کی تقریب کا مقصد پاکستان اور تاجکستان کے تاجروں سے مخاطب ہونا ہے۔ Good afternoon, Your Excellency, Mr. Prime Minister. I would like to cordially welcome you to Tajikistan. My question is about the possibility of launching branches of Pakistani banks in Tajikistan for providing loans to our investors and businesses. What you have just said is noteworthy. Yes, we will. The small answer to your question is we welcome all of you in various areas, and whatever you're saying, yes, those areas are welcome to us. Yes. We can, in Pakistan, there is no difference between giving a loan to Pakistan. Sorry, just a minute. Did you ask that if a Pakistan bank would be open in Tajikistan to give us? May I answer your as far as the banking facilities are concerned between our two countries, this is one of the things we are talking with your government, and inshallah in the coming months we should be able to get the banking facilities ready. If your question is that can Tajik come into Pakistan and borrow money from the Pakistani banks, the answer is yes, it can be done. You will have to give all the necessary collateral, which are a standard operating procedure, whether you are a Pakistani or a Tajik. Thank you. I am Taqirul hai. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ عمران خان صاحب اور رزاق داؤد صاحب اور آپ کی پورا ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ڈیلیگیشن تاجکستان پاکستان سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تاجکستان پہنچ گئے 50 لوگ. اور سب سے پہلے میں آپ کی بہت مشکور ہوں. فرسٹ ٹائم بلوچستان سے ڈیلیگیشن میں 10 لوگ شریک ہیں اور اس میں تاجر برادری ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اور تاجکستان کی گورنمنٹ کا میں بہت مشکور مہمان نوازی اور آپ کی کونسلیٹ اور میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خان صاحب ہمارا اردو تھوڑا گڑبڑ کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. خان صاحب ہمارا ٹریڈ پالیسی 20-15 سال سے اس ٹریڈ پالیسی کو چینج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت پرانا ٹریڈ پالیسی ہے. ملکوں نے بہت ترقی کیا تھا. ہمارا ٹریڈ پالیسی بہت 20 سال سے اس کو رزاق داؤد صاحب سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے. دوسرا خان صاحب ہمارا ایکسپورٹ بلوچستان کے حوالے سے ہمارا ساتھ 1200 کلومیٹر بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے اور 700 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہے. یہاں پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ 500 ایٹم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارا 5 ایٹم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ایران کے سے امپورٹ ہو رہے ہیں 500 ایٹم. تو میں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ٹریڈ پالیسی بہتری اچھا ہونا چاہیے. اور تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اس کے ساتھ ہمارا لنک روٹ جو ہے جو شیرخان بندر ہے اور چمن کے راستے بہت شارٹ روٹ ہے. تو میں خان صاحب اس پالیسی پہ اور اگر پالیسی میں نرمی ہو جائے بلوچستان سے ایکسپورٹ کرنے میں، بلوچستان میں 75% لوگوں کا روزگار زراعت ہے یا لائف سٹاک ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے. تو خان صاحب اگر
हमारा ज़रात को तरजीह दे दे। हमारा बलूचिस्तान वाले लोग जिस तरह इस तरह आपने इस डेलीगेशन में शामिल किया था, हम महबूब वतन लोग गए, हम बलूचिस्तान एक्सपोर्ट जिस तरह पॉलिसी आप मैं बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। और खान साहब एक छोटा सा वो है कि खान साहब ग्वादर से हमारा रेल का ट्रैक जो मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के लिए ताजिकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान से ग्वादर को लिंक ट्रैक रेलवे ट्रैक कोयटा तक होना चाहिए, सकर तक तो पूरा पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़रात और लाइफ स्टाइल में। थैंक यू खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम तौकीर उलग, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity because Deputy Prime Minister is sitting here. On behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here that will not only increase the business, but it will also help your people. दुशंबे में पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं और ताजिर उनसे सवालात कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसके जवाबात दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ 67 कंपनियाँ ताजिकिस्तान आई हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के मनसूबे का 1000 की जल्द तकमील चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सस्ती और माहौल दोज हाइड्रो पावर एनर्जी से फ़ायदा उठा सकेंगे। 2 रोज़ा दौरा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। इससे पहले वो बिज़नेस फोरम से खिताब कर रहे थे जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज की तकरीब का मकसद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताजिरों से मुखातिब होना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ 67 कंपनियाँ ताजिकिस्तान आई हैं। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क कारोबारी तबके को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरमायाकारों को सहूलियात के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई के मनसूबे का 1000 की जल्द तकमील चाहते हैं। हम पाकिस्तान में सनतकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियाँ भी पैदा की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि दुशंबे में इस वक्त मुश्तरका बिजनेस फोरम में मौजूद हैं, इससे पहले उन्होंने खिताब किया जिसमें उनका कहना था कि दोनों ममालिक में तिजारत से फ़ायदा होगा। बिज़नेस कम्युनिटी को हर किस्म की सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिज़नेस फोरम से अब से कुछ देर पहले खिताब किया गया। आज के फोरम का मकसद उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के कारोबारी रवाबित को बढ़ाना है। दुशंबे में पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ देर पहले खिताब भी किया और अब सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का इस मौके पर यह कहना था कि आलमी सरमाकारों को पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात मुहैया करेगी, जबकि ताजिकिस्तान के सदर से मिलकर दोनों मुल्कों के ताजरों के लिए हर मुमकिन आसानियाँ पैदा करेंगे। और इस मौके पर यह भी कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि जितने भी मसाइल हैं सरमाकारों को उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तवानाई का मनसूबा कासा का इस मौके पर उन्होंने जिक्र किया, कासा 1000 जिसकी जल्द हम तकमील चाहते हैं। और बिजनेस फोरम में कुल 67 कंपनियां हैं पाकिस्तानी जो कि शिरकत कर रही हैं और इससे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन तिजारत को फ़रोग़ देने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। यहाँ इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है।
लेकिन आलमी सरमाकारों को पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि ताजिकिस्तान के सदर से मिलेंगे और दोनों मुल्कों के ताजरों के लिए मुश्तरका तौर पर आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। दावत दी उन्होंने ताजिकिस्तान के सरमाकारों को पाकिस्तान में आकर सरमाकारी करें और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दें। आज की तकरीब का मकसद दोनों मुल्कों के ताजर जो बरादरी है उससे खिताब करना और उन्हें आसानियाँ फराहम करने के लिए यकीन दहानियाँ करवाना है। पाकिस्तान की 67 कुछ कुल कंपनियां हैं जो कि इस बिज़नेस फोरम में शिरकत कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा ताजिकिस्तान, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, रज़ाक दाऊद भी उनके हमरा हैं। दोशंबे ताजिकिस्तान से आप मनाज़िर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।